ہے کہ عزیزان گرامی یہ جو کائنات ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہے یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اور وہ ایٹم کے جگر سے لے کر اور کہکشاؤں اور نیبولاس تک ہر شے اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ہر آن، ہر لمحے، ہر ساعت اللہ کی مشیت جاری و ساری ہے۔ تو ایک طرف کائنات کا ذرہ ذرہ جس میں انسان بھی شامل ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اور دوسری طرف اللہ نے اپنے بندے کو دعا کے مانگنے کا حکم دیا۔ تو یہ اللہ کی مشیت یعنی انسان کی جو تقدیر ہے جو اس کی مشیت کے تابع ہے، بڑا باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اگر اس کو سمجھ لیا تو بہت سارے مسائل کا آپ خود جواب دے سکیں گے جو خود آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں۔ یہ اہم ترین مسائل جو تقدیر اور زندگی اور عمل کے ہیں، آپ خود ان کا جواب دیں گے۔ درود پڑھ جائیں محمد علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی آپ کی جو تقدیر ہے کیونکہ مشیت کے تابع ہے اس لیے یہ فکسڈ نہیں ہے، مشیت میں ہر آن چینج ہے، اور کیونکہ اس کی مشیت بدل رہی ہے اس کا ارادہ اس بندے سے متعلق بدل رہا ہے۔ اور کیوں بدل رہا ہے؟ ہر آن انسان اپنی نیت کو بدل رہا ہے، ہر آن انسان اپنے عمل میں تبدیلیاں لا رہا ہے، ہر آن انسان اپنے ارادوں کو متغیر کر رہا ہے۔ تو جو انسان کی نیت اور ارادے اور عمل بدل رہا ہے اسی کے مطابق اس کی تقدیر مشیت میں بدل رہی ہے۔ تو مشیت زیرو سے لے کر یعنی دعاؤں کے سبب زیرو سے، جیسے کسی کی دعا ہے وہ رد ہو گئی، کسی کی دعا ہے وہ 10% مشیت میں جگہ پائی، کسی کی دعا ہے کہ اس نے 70% جگہ پائی، اور کسی کی دعا ہے کہ 100% اس نے مشیت میں جگہ پائی، انبیاء کی دعا، ائمہ کی دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مشیت انسان کی دعا اس کی تقدیر میں زیرو سے لے کر 100% تک مسلسل ٹو اینڈ فرو حرکت کر رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی تقدیر انسانی کیا ہے؟ تقدیر کی ڈاکٹر صاحب یہ الحمدللہ میں اس کو اپنی زندگی کے علم کا استنباط کا ایک شاہکار سمجھتا ہوں، اور یہ نقطہ آج نہیں کل نہیں 30 سال پرانا ہے میرا، میں نے اس عمر میں اس کو حاصل کیا تھا کلام معصوم کی برکت سے۔ تو آپ کی تقدیر ہے جو زیرو سے لے کر 100% تک پینڈولم کی طرح حرکت کر رہی ہے، اور اسی تقدیر میں آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو زیرو بھی ہو سکتی ہے، 10% بھی ہو سکتی ہے، 40% بھی ہو سکتی ہے، اور 100% بھی ہو سکتی ہے۔ تو انسان کی تقدیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انسان کی تقدیر کیا ہے؟ دعا اور اللہ کی مشیت سے جو کمپوزیشن وجود میں آتا ہے وہ تقدیر انسانی بن جاتا ہے۔ دعا اور مشیت الہی سے جو تناسب وجود میں آیا، جو ریشو وجود میں آئی، جو کمپوزیشن وجود میں آیا، وہ انسان کی تقدیر قرار پائے۔ یہ ہے تقدیر کا مقام، اور کل اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بات کروں گا۔ میں اسی مقام پر ذرا سی ایک دو حدیث کو بیان کر کے میں ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک روایت اس مقام پر۔ آپ کو میں نے ڈرا دیا تھا لیکن ڈرے نہیں۔ اور یہ راوی ہے ابو ایوب سجستانی، ایکچول راوی ہے، اور یہ صوفیہ میں سے اپنے وقت کے صوفیوں میں، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری صوفی ہیں جو پائونیئرز ہیں تصوف کے، جن میں حسن بصری، رابعہ بصری خاتون بھی، اور سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، بہت سارے 8 ہیں یہ افراد۔ ابو ایوب سجستانی کا بیان ہے کہ ہم سب مل کر مکے پہنچے اور چاہتے یہ تھے کہ ظاہر ہے کہ عمرہ کریں، حج کا زمانہ نہیں تھا، اور خانہ کعبہ کا طواف کریں، حجر اسود کو چومیں۔ تو وہ آگے بڑھے، جب مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سخت قحط ہے، بارش نہیں ہوئی ہے برسوں سے، عرصے سے،
फेमाइन। तो उन्होंने देखा जुब्बे और हमारे ये दैट काइंड ऑफ थिंग हमारी जेस्चर को समझ लिया कि ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। कहा तुम हमारे लिए दुआ मांगो। अहले मक्का ने कहा ताकि बारिश हो। अब वो यूए सजिस्तानी का बयान है। और ये जो मैंने नाम लिए हैं ये तसव्वुफ की जो तारीख और किताब हैं, बड़े बड़े इनके फ़ज़ाइल उनमें लिखे हुए हैं। लेकिन मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, अदबी लफ्ज़ कहूँगा, सफ़े सुनहरी नहीं किए इनके बारे में, सियाह किए हैं। सफ़ों को सियाह किया गया है। खैर सब ने दुआ मांगी, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, खाने काबा के पर्दों को पकड़ कर, हजर अस्वद के पास आकर, लेकिन कुछ ना हुआ, बारिश नहीं हुई। पहले मक्का मायूस हुए, क्या तुम कैसे इबादत गुजार बंदे हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करता। अभी इसी नाउमीदी के आलम अहले मक्का थे कि उन्हें दूर से गर्द बुलंद होते देखे। उस तरफ देखने लगे, गर्द चाक हुई तो एक नाका रहा है, उस नाके पर एक नूरानी सूरत जवान है। करीब आया नाका तो लोगों ने पहचाना, अली इब्नुल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम नाके के करीब आए और मक्के काबे के करीब आए और इमाम ने इन सबको पुकारा, आवाज़ें इनके नामों से पुकारा और एक जुमला कहा कि तुम में कोई नहीं कि जो अल्लाह का महबूब बंदा हो। तो कहा कि यबना रसूल अल्लाह अलैना दुआ व अलैहिल इजाबा, हम पर दुआ का मांगना उसने फ़र्ज़ किया है और उसने अपने ऊपर उसकी इस्तिजाबत ली है। अल्लाह कबूल नहीं कर रहा तो इसमें हमारा कसूर नहीं, हम दुआएं मांग रहे हैं। इमाम ने कहा कि नहीं, तुम्हें कोई एक ऐसा नहीं कि जिसको अल्लाह दोस्त रखता हो, इसलिए कि अल्लाह ने अपने इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहा है कि मेरा महबूब बंदा जब भी मुझसे मांगेगा अता कर दूंगा। अल्लाह ने अपने इज्जत व जलाल की कसम खाकर कहा है कि जब भी वो तलब करेगा मैं उसको अता कर दूंगा। तुम में कोई अल्लाह का महबूब बंदा नहीं। कहा खाना काबा से दूर चले जाओ। अभी अभी उन्होंने हजर अस्वद को पकड़कर दुआ मांगी थी। एक जुमला अर्ज कर दो आपकी मारिफत के लिए कि वो बंदे ये नहीं जानते थे, वो लोग, वो सूफिया, कि हजर अस्वद वो है कि जैसा कि फरजदक ने कहा था इमाम के लिए कि हजर अस्वद खुद इनके हाथों की खुशबू को सूंघ कर इनके हाथों का बोसा देता है। बादशाह के सामने कह रहे हैं कि ये वो है कि जब ये हजर अस्वद को चूमने के लिए हाथों को बढ़ाते हैं तो खुद हजर अस्वद इनके हाथों की खुशबू को सूंघ कर बोसा देता है। और इमाम हजर अस्वद के नज़दीक आए, 2 रकत नमाज पढ़ी। सिर्फ ये जुमला सुनाना चाहता हूँ और यहीं से मैं मक्तल करबला की तरफ जाऊँगा। 2 रकत नमाज पढ़ी और इमाम ने एक मरतबा दुरूद पढ़ दिया। एक मरतबा इमाम ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया। पहले नमाज देखें, कॉम्बिनेशन देखिए, और यही हमारे पास फ़िक़्ह जाफरिया के अंदर है, नमाज पढ़ो और फिर दुआ को मांगो। इसके माना क्या है? इसके माना यह है कि पहले सर को झुका दो और फिर हाथों को दुआओं के लिए बुलंद कर दो। पहले सर को झुकाओ और फिर दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर दो। गालिब का बड़ा मुश्किल सा शेर याद आ रहा है, लेकिन उसकी तशरीह कर दूं, सुना दूं आप लोगों को दुआ के मौजू पर। मिर्जा गालिब कहते हैं कि दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले पहले कुछ दो लफ्ज़ ज़ाहिर फौरन नहीं आ रहे हैं। ताबा के, यहाँ से सुनिए पहले मिसरे को। ताबा के कब तक, हाउ लॉन्ग। ताबा के पस्ती फितरत। पहले मिसरे में गालिब कहते हैं कि परवरदिगार अपनी नाउज़ु बिल्लाह गलत फितरत की वजह से कब तक मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, कब तक मैं गढ़ों में जाऊंगा। पस्ती फितरत यारब मिले, दराज़ी दस्ते दुआ मुझे।
जितना मैं नीचे की तरफ जाऊं, जितना मैं असफला साफिलीन बनूं, उसी कदर मेरे हाथ दुआओं के लिए बुलंद होते रहे। तो आपने देखा कि गालिब ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम अपने अमल से असफला साफिलीन की तरफ जा रहे हो, मगर अल्लाह ने तुमको एक नेमत दी है, दुआ की नेमत से तुम अहसन तकवीम बन सकते हो। गालिब के नुक्तों पे नहीं, मेरे नुक्तों पे भी सुभान अल्लाह कह दिया करें। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। यार मिले दराज़ी के दस्ते दुआ मुझे, परवरदिगार मैं जितना नीचे जाऊं, पस्त जाऊं, उसी कदर दुआओं के हाथों को मैं बुलंद करता रहूं, उसी कदर मैं दुआओं के हाथों को बुलंद करता रहूं। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि अब देखिए ये है लफ्ज़, जो जुमला जो मैंने पूरी रिवायत को अर्ज किया, मैं ये अल्लामा मजलिसी की किताब बैनुल हयात से अर्ज कर रहा था। और तो इमाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी, हजर अस्वद के पास दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया और इरशाद फरमाया, जुमला सुनिएगा, इरशाद फरमाया कि परवरदिगार उस मोहब्बत के सदक़े में जो तू मुझसे करता है। सूफिया और किस्म के वास्ते दे रहे थे, मगर इमाम के यकीन की मंजिल को देखिए कि परवरदिगार उस मोहब्बत के सदक़े में जो तू मुझसे करता है, इसलिए कि अगर अल्लाह इन बंदों से मोहब्बत ना करता तो इनकी मवद्दत को वाजिब ना करार देता। परवरदिगार उस मोहब्बत के सदक़े में जो तू मुझसे करता है, अहले मक्का पर अपने करम के बादलों को नाज़िल फरमा। रबी इमाम की हाथ दुआओं से नीचे नहीं आए थे कि बादल आने शुरू हुए, मुसलसल बादल आने शुरू हुए और अहले मक्का पर बारिश होने लगी, रहमत और बादलों से बारिश होने लगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है दुआओं का मकाम। इंशाअल्लाह मैं और इसमें इजाफा करता रहूँगा आने वाली 3 मजालिस के अंदर, और बड़ा अहम तरीन मौजू और मुफीद बातें मैं समझता हूँ कि इन 6 मजलिसों में हो गई, आज की 6ठी मजलिस, और हम इसको जारी और सारी रखेंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, इमाम की दुआ कबूल हुई, और शायद मैंने कल की मजलिस में यहाँ कहा था, हाँ, कि इमाम करबला आकर 10 मुहर्रम के बाद 2 मुहर्रम को काफिला दाखिल हुआ, और उस दिन के बाद इमाम आहिस्ता आहिस्ता बीमारी की तरफ गए, और आने वाली चंद तारीखों में इमाम ऐसे बीमार हुए कि बिल्कुल आपको ज़ाहिरी होश ना रहा, और बेहोशी की आलम में 8 मुहर्रम भी गुजरी, 7 मुहर्रम उससे पहले गुजरी, 9 आ गई, तासुआ आ गई, और अब इमाम की जो आँख पहली मरतबा खुली, ये मैंने कल कहा था, आज उसको रब के लिए फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ। उस वक्त खुली कि इमाम ने इरशाद फरमाया, खुद इरशाद फरमाया कि उस वक्त मेरी आँख खुली कि जब बाबा अपना खुतबा दे रहे थे अपने जानसानों के दरमियान, और एक एक से कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो, तन्हा छोड़ दो और चली जाओ। और कहा कि मैंने अपने कानों को लगाया अपने बाबा की आवाज़ की तरफ, उनके खुतबे की तरफ। तो उस वक्त मैंने सुना कि मेरे भाई कासिम ने पूछा, कहा कि चचा जान, कल कौन कौन जिंदा रहेंगे? का कासिम जान लो, कोई हम में से जिंदा न रहेगा, यहाँ तक कि नन्ना अली असगर भी। तो कहा कि मेरे भाई कासिम ने कहा, चचा जान, क्या अशकिया खैमों में दाखिल हो जाएंगे? कहा नहीं कासिम, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई खैमों में दाखिल होने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, मैं असगर को खुद लेकर मख्तल में जाऊंगा। और फिर इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सुना, मेरा भाई कासिम ने पूछा मेरे बाबा से, मेरे बाबा ने फिर पलट कर कासिम से पूछा, जब इमाम ने मौत का जिक्र किया, कैफा वजतल मौत या कासिम, कासिम मौत को तू कैसा पाता है? कल रात की मजलिस में इशारा कर रहा था कि यही वो बंदे हैं कि जो जिंदगी का मजा भी बताते हैं, यही वो बंदे हैं जो मौत का जायका भी बताते हैं। इमाम ने पूछा कि कासिम तू मौत को कैसा पाता है? कहा अहला मिनल असल, ये शहद से भी ज्यादा शीरी है, हक की मौत है, शहादत की मौत है।
ये आप रिवायत सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं हज़रत कासिम के हवाले से, लेकिन इसमें भी तदब्बुर और ताक़ुल करें, एक एक लफ्ज़ को छाने ठटकें। देखिए मसाइब के दौरान भी मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि ये सवाल इमाम अली मकाम ने कासिम से क्यों किया कि कासिम तू मौत को कैसा पाता है। मैंने रोक दिया आपके मसाइब को, आपको समझाना चाहता हूँ। कासिम तू मौत को कैसा पाता है, ये कासिम से क्यों किया, किसी और से क्यों नहीं किया। अब है ये मसाइब और रोने का मकाम इसलिए कि जितनी दर्दनाक मौत कासिम की हुई, जितने टुकड़े लाशें कासिम के हुए, किसी और शहीद के ना हुए अजीजाने गिरामी, तो कासिम की मौत सबसे दर्दनाक मौत थी। और उस तकलीफ और शिद्दत और दर्दनाक मौत को कासिम शहद से ज्यादा शीरी करार दे रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबि यनक़लिबून। परवरदिगार बहक़ शहीदान करबला, बहक़ यसीरान करबला, जो मोमिन मोमिनात मर चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा सबको हिफ्ज़ और अमान में रख। रब्बुल आलमीन परेशानों की परेशानियों को दूर फरमा, तालिब हाजात की हाजतों को बरला, कर्जदारों के कर्जों को अदा फरमा। परवरदिगार जो दुआएं मांग रहे हैं उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। और कल एक बंदे मोमिन ने बड़ी